पुरानी आत्मा किसी के शरीर में प्रवेश करती है तो ऐसे नहीं कहेंगे कि माता पिता से मिलने आया हूँ, তাই না? আমরা যখন জন্ম নিই আমরা বলি আমি মালিক। মাতা পিতার সব কিছুর আমি মালিক। কেউ বলে না যে আমি দেখা করতে এসেছি মাতা পিতার সঙ্গে, আবার চলে যাব পরমধাম, এরম কেউ বলেন। কিন্তু শিব বাবা আসলে কি বলে? বলে আমি মালিক না, আমি ভাড়া নিয়েছি, আমি এসেছি, আমার যা বলার, যা গাইড করার করব, আর আমি দেখা করতে এসেছি, চলে যাব, তাই না? তো দুজনের শরীরে আসার সিস্টেমে আলাদা না? तो उनको ऑटोमेटिकली माता पिता मिल जाते हैं। यहाँ यह है नई बात। बाप कहते हैं मैं परम धाम से आकर तुम बच्चों के सम्मुख हुआ हूँ, बच्चों को फिर से नॉलेज देता हूँ, क्योंकि मैं हूँ नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। मैं आता हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने, राजयोग सिखाने। बाबा कहते बच्चों को फिर से नॉलेज देता हूँ, क्योंकि मैं हूँ नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। मैं आता हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने, राजयोग सिखाने। राजयोग सिखाने वाला भगवान ही है। कृष्ण की आत्मा को यह ईश्वरीय पाठ नहीं है, हर एक का पाठ अपना है, তাই না? শ্রীকৃষ্ণের পাঠ হলো সত্যযুগে, তো শিব বাবার পাঠ হলো সঙ্গম যুগে। সবার পাঠ আলাদা। ईश्वर का पाठ अपना है, तो बाप समझाते हैं मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो। तो मीठे बच्चेগুলো কি করবে আজকে সারাদিন? आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा। ऐसा अपने को समझना कितना मीठा लगता है। हम क्या थे, अब क्या बन रहे हैं, তাই না? কি ছিলাম আমরা, কত মিষ্টি ছিলাম, তাই না? কত সুন্দর সেই দেবলোক ছিল, কি সুন্দর সব দেবী দেবতারা, তাই না? আনন্দে ঘুরে বেড়াতাম। यह ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है, यह भी तुम अभी समझाते हो। यह पुरुषोत्तम संगम युग है, इतना सिर्फ याद रहे तो भी पक्का हो जाता है कि हम सतयुग में जाने वाले हैं, তাই না? এটা সঙ্গম যুগ চলছে, এটাও যদি শুধু মনে থাকে তাহলে খুশি খুশিতে থাকবো। বাবা গতকাল বলেছিল না, কেমন থাকতে বলেছিল? खुशी, তাই না? अभी संगम पर हैं, फिर जाना है अपने घर, इसीलिए पावन तो जरूर बनना है, তাই না? বাবা গতকালও মুরলিতে বলল নবীনতা ही পবিত্রতা की है, তাই না? বাবা পবিত্রতার স্থাপনা করতে এসেছে, তাই না? पावन तो जरूर बनना है, अंदर में बहुत খুশি होनी चाहिए, তাই না? সত্যযুগ কেমন হবে? গাছপালা, পশু পাখি সব একদম শুদ্ধ, পবিত্র, সুন্দর, তাই না? বেস্ট কোয়ালিটি। তো সেখানে শ্রীকৃষ্ণের আত্মা বেস্ট কোয়ালিটি। তো যাবে যারা শ্রীকৃষ্ণের কাছাকাছি থাকবে তারাও কেমন চাই? বেস্ট কোয়ালিটি, তাই না? एकदम पवित्र आत्मा, प्योर सोल, खाटी। तो बाबा बोलचेन अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। ओहो, बेहद का बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बनेंगे। আর পথও কত সহজ। বাবা কি বলছেন? শুধু আমাকে ইয়াদ করো। আজকে বাবা বলল না, একটু ধৈর্য রাখো, একটু গম্ভীরতা, অন্তর্মুখতা চাই, একটু জীবনের প্রতি সমজদারি চাই, ব্যাস ভালো যোগী হয়ে যাবে। আর ভালো যোগী হয়ে গেলে লাইট মাইট আসবে।
লাইট মাইট আসলে শতপ্রধান হয়ে যাব। আমার লক্ষ্য জীবনের সঙ্গম যুগের কি হতে, শতপ্রধান হতে, তাই না? তো বাবা বলছেন বিশ্ব কা মালিক বনেঙ্গে, তাই না? বাবা তো লেগে পড়ে আছে যাতে বাচ্চাগুলো দেব শিশু হয় কৃষ্ণের মতন, আর তারা সব বিশ্বের মালিক হয়ে যায়। बाप कितना बच्चों को प्यार करते हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ टीचर के रूप में पढ़ाकर और घर चले जाते हैं, তাই না? বাবা পড়ায় আবার সারাদিন কি করে? বাবা কালকেই বলছিল না, আমি টিভি খুলে দেখি। বাবা কখনো বলে আমি সেন্টারগুলো চক্কর লাগাই। বাবা কখনো বলে অমৃতবেলা আমি প্রত্যেকটা বাবার বাচ্চার কাছে চক্কর লাগাই, তাই না? तो ऐसे नहीं कि सिर्फ टीचर के रूप में पढ़ाकर और घर चले जाते हैं, यह तो बाप भी टीचर भी है, तुमको पढ़ाते भी हैं, याद की यात्रा भी सिखलाते हैं। बाबा पढ़ाए सारा दिन साक्षी হয়ে দেখে বাচ্চাটা কি করলো, তারপরে আবার যখন দেখে যে কিছু ধারণা বাকি থেকে গেল, আবার পরের দিন বাবা সেই বুঝে মুরলি চালায়। মনে হয় না যে কেউ যেন আমাকে ওয়াচ করছিল, যা ভুলভাল হয়েছে বা যা ঠিক করতে হবে সেটা পরের দিন মুরলিতে বাবা গাইড করে দেবে, তাই না? মানে নজর তো রাখে না। ऐसा विश्व का मालिक बनाने वाले, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ बहुत लब होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठने से ही पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करना चाहिए। तो प्रथम स्मृति की हबे शिव बाबा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अर्थात याद करेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे। बच्चों को अपने दिल से पूछना है, हम सवेरे उठकर कितना बेहद के बाप को याद करते हैं। তো সব উঠেছেন আজকে, বাবাকে গুড মর্নিং করেছেন। বাবা বলছেন নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে আমি কতটা সবেরে সবেরে বাবাকে याद করি। मनुष्य भक्ति भी सवेरे करते हैं ना, भक्ति कितना प्यार से करते हैं, परंतु बाबा जानते हैं कई बच्चे दिल व जान सिक व प्रेम से याद नहीं करते हैं। বাবা কমপ্লেন করছেন শিব বাবা, সব বাচ্চারা আমাকে দিল থেকে ভালোবাসে না, ইয়াদ করে না, প্রেম সে ইয়াদ করে না, উপর উপর বাবা বাবা করে। ঠিক বলছে বাবা না মিথ্যা কমপ্লেন করছে? কি ঠিক বলছে? আমরা তো লিস্টে নেই, তাই তো? আমরা তো বাবাকে ভালোবেসে ইয়াদ করি, তাই তো? হ্যাঁ, तो सवेरे उठ बाबा से गुड मॉर्निंग करें, ज्ञान के चिंतन में रहें तो खुशी का पारा चढ़े। बाप से गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा? বাবা বলছেন বাবাকে যদি সকাল সকাল ইয়াদ করবে না তো সারা দিন তোমার কাছে সময় কোথায় যে তুমি যোগে বসবে, তাই না? তো সকালের পাওয়ারফুল যোগ থাকে, ওই সময় কাজের কথা মনে পড়ে না, তো সেই সময়ে পাপ কাটানো সহজ হবে। मुख्य है ही याद, इससे भविष्य के लिए तुम्हारी बहुत भारी कमाई होती है, তাই না? বাবা বলছেন তোমার ইনকামও বাড়বে, তাই না? ভবিষ্যতে জন্ম জন্মান্তরের कल्प कल्पांतर यह कमाई काम आएगी। बड़ा धैर्य गंभीरता, बड़ा धैर्य गंभीरता समझ से याद करना होता है। मोटे हिसाब में तो भल करके यह कह देते हैं कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट याद करने में मेहनत है, তাই না? একদম লাইট মাইটের ফিলিংস হতে থাকবে,
ज्वाला स्वरूप যোগ হতে থাকবে, তাকে বলবে একুরেট ইয়াদ, তাই না? উপর উপর বাবা বাবা করলে হবে না, ফিলিংস চাই লাইট মাইটের। जो बाप को जास्ती याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है। योग और ज्ञान दो चीज़ें हैं। बाबा बोलছে আমাকে याद করবে তো 100% তোমার याद আমার কাছে পৌঁছে যাবে। উপর উপর याद করলেও পৌঁছায়, কিন্তু লাইট মাইট আসে না, কেননা আমি কানেক্টেড না। আর যদি একদম গম্ভীরতা নিয়ে ধৈর্য নিয়ে ভিতর থেকে করি তাহলে তো পাওয়ারফুল লাইট মাইট আসে। बाबा बोलছেন योग की सब्जेक्ट अलग है, बहुत भारी सब्जेक्ट है। योग से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है, তাই না? মুরলি ক্লাস তো হয়ে যায়, জ্ঞান তো হয়ে যায়, কিন্তু যোগও 1 ঘন্টা মিনিমাম, তাই না? বাবা তো এমনি বলছিল না কত ঘন্টা যোগ ভাট্টি চাই, 4 ঘন্টা, তাই না? কিন্তু কমসে কম 1 ঘন্টা তো পাওয়ারফুল যোগ চাই, তাই না? योग से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है, याद बिना सतो प्रधान होना असंभव है, তাই না? বাবা বলছেন খাঁটি হতে পারবে না তুমি যদি যোগ পাওয়ারফুল না। अच्छी रीति प्यार से बाप को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट मिलेगी, हेल्दी बन जाएंगे। करंट से आयु भी बढ़ती है। बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी सर्च लाइट देते हैं। बाबा कल के बोलो ना कि शरीर जीता रहे, তাই না? তো আয়ুও চাই। এই 2-4 দিনে চলে যাব উপরে, ওইরকম বললে হবে না, তাই না? আয়ু চাই, পুরুষার্থ চাই, থাকতে হবে, তাই না? বাবা বললো না জীবনের থেকে বৈরাগী হলে হবে না, কর্তব্য কমপ্লিট করে যেতে হবে। बाप कितना बड़ा भारी खजाना तुम बच्चों को देते हैं, मीठे बच्चों को यह पक्का याद रखना है। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा पतित पावन भी है, सदगति दाता भी है। सदगति माना स्वर्ग की राजाई देते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार से बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं, তাই না? বাবার চেহারা দেখেছেন না বাবা মিলনের সময়? কত প্যার সে বাবা পালনা দেয়, কত প্যার সে বাবা বোঝায়, তাই না? বাবার চেহারাতে কি খুশি কি ভালোবাসা থাকে, তাই না? যে বাচ্চাদের কাছে এসেছি। तो बाबा बोलছেন बाप दादा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार करते हैं, कोई तकलीफ नहीं देते। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और चक्र को याद करो, তাই না? ব্রহ্মা বাবার মধ্যে যখন শিব বাবা আসতো তার তো কোনো ভিডিও রেকর্ডিং নেই, না হলে ফিলিংসটা আসতো। কিন্তু গুলজার দাদির মধ্যে যখন যখন বাবা এসছে অর্ধেকের ওরও ভিডিও নেই, পিছনের কবে থেকে যেন শায়দ 2000 সাল পর থেকে যখন অলরেডি দাদির শরীর মানে বয়স হতে শুরু হয়ে গেছে তখনকার হয়তো ভিডিওগুলো আছে, আগেরগুলো তো সেগুলোও তো করা হয়নি, কেন তখন তো ছিল না এইসব জিনিস, তাই না? तो बाप की याद में दिल एकदम ठहर जानी चाहिए, एक बाप की ही याद सतानी चाहिए। बाबा बोलছেন কেমন याद করবে? যেন বাবাকে याद না করতে হয়, যেন বাবা অটোমেটিক याद আসে, याद सतानी चाहिए, তাই না? क्योंकि बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है। বাবার কাছে বসতে পারছি না তো হৃদয়ে যেন ছটপট করে, না আমাকে বসতেই হবে বাবার কাছে,
আমাকে বাবার সঙ্গে না বসলে আমার দিল শীতল হবে না, এরকম তড়প চাই, তাই না? सताने वाला याद। अपने को देखना चाहिए हमारा बाप के साथ कितना लब है। বাবা বলছেন আজকে চেক করব কত ভালোবাসি বাবাকে আমি। कहाँ तक हमारे में दैवी गुण है। আর বাবা কি বলে, এমনি আসবে না, নোংরা মোংরা হয়। কেমন আসবে? দৈবী গুণে সেজে সাজায় আসবে, তাই না? तो बाबा बोलছেন क्योंकि तुम बच्चे अब कांटों से फूल बन रहे हो। বাবা কাঁটা দেখতে চায় না, কোনো মা বাবা নিজের বাচ্চাকে কাঁটা দেখতে চায় না, তাই না? সবাই ফুলই দেখতে চায়। जितना जितना योग में रहेंगे उतना कांटों से फूल सतो प्रधान बनते जाएंगे। फूल बन गए फिर यहाँ रह नहीं सकेंगे। फूलों का बगीचा है ही स्वर्ग। तो बाबा स्वर्गे काके निये जाबे जार मध्य कोनो काटा थाकबे ना, फूल हये गेछे। तो फूलई तो भगवानेर पाये लागे, ताई ना? बाबा फूलई तो आनते बोलेछे, बाबा फूल दिएई तो पुजो करते बोलेछे, किन्तु कोन फूल? एकदम सुगंधवाला फूल, सेजे गुजे दैवी गुणवाला फूल, ताई ना? सेई रकम आत्मा फूल आमाके गिफ्ट दाओ, एटा बाबा बोलेछे। तो जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। कभी किसी को कांटा नहीं लगाएंगे, ताई ना? तो फूल के हबे जे काउके कांटा फुटाबे ना। क्रोध भी बड़ा कांटा है, बहुतों को दुख देते हैं। अभी तुम बच्चे यदि क्रोधेर उपरे विजयी ना होते पारे ताहले कोन देवता रूपे पुजो हबे? शनि। और शनि महाराजेर प्रसाद खेये लोकेरा की करे? आगे तो स्नान करे बाड़ी ढुकतो, एखन तो हाथ पा धुए बाड़ी ढुके, ताई ना? ताहले भाबो एरकम देवता होते चाओ? कोथाय श्रीकृष्णेर और कोथाय शनि महाराज, दुटोर मध्य तफात आछे ना? तो अभी तुम बच्चे कांटों की दुनिया से किनारे पर आ गए हो। तुम हो संगम पर, जैसे माली फूलों को अलग पाट बर्तन में निकाल कर रखते हैं, वैसे ही तुम फूलों को भी अब संगम युगी पाट में अलग रखा हुआ है। तो যারা সুন্দর সুন্দর দৈবী গুণবালা ফুল, বাবা সেই ফুলগুলো কি করে? সব ভক্তি মার্গে ভক্তরা ওই কি একটা ধরে ফুল তুলতে যায় না, এখন বাবা ওই রকম একটা ধরে বেরিয়েছে। আমার কোথায় কোথায় ফুল আছে, এতদিন আমরা ভগবানের জন্য ফুল তুললাম, এখন সে ফুল খুঁজতে বেরিয়েছে, কোথায় কোথায় আমার ভালো ভালো ফুল আছে আমি সেগুলো নিয়ে যাব, তাই না? तो फिर तुम फूल स्वर्ग में चले जाएंगे, कलियुगी कांटे भस्म हो जाएंगे। बाबार फूल चॉइस करा हो गेल, तारपरे कांटार जंगल के आगुन धरे जाबे, ताई ना? एकेबारे जा खुशी जा होच्छे, ताई ना? लोकेराओ तो ताई करे, बागान बानाते थाकले कि करबे? भालो भालो चारा थाकले बेर करे नेबे, दिए पुरो कांटार जंगल आगुन धरिए देबे। तो मीठे बच्चे जानते हैं पारलौकिक बाप से हमको अविनाशी वर्षा मिलता है। जो सच्चे सच्चे बच्चे हैं जिनका बाप दादा से पूरा लब है उनको बड़ी खुशी रहेगी, ताई ना? जे हृदय अंतर थेके बाबाके भालोबाशे से केमन थाकबे? खूब खुशीते थाकबे। हम विश्व का मालिक बनते हैं। हाँ, पुरुषार्थ से ही विश्व का मालिक बना जाता है, सिर्फ कहने से नहीं। जो अनन्य बच्चे हैं उन्हों को सदैव यह याद रहेगा कि हम अपने लिए फिर से
वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापना कर रहे हैं। कौन राजधानीते जाबे? सूर्यवंशी ना चंद्रवंशी? सूर्येर मतन एग्र स्थिति ना अप डाउन वाला स्थिति? तो बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे उतना ही तुमको उजूरा मिलेगा। बहुतों को रास्ता बताएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी, ताई ना? अनेक आत्मादेरके बाबार मेसेज देव, ताई ना? तो बाबा बोलছেন তোমার প্রচুর उजूरा माने भगवानेर तरफ थेके गिफ्ट आसबे। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर फिर दान करना है। ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियाँ भर भर कर देते हैं। जो फिर दान करते हैं वही सबको प्यारे लगते हैं। बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। सेंसिबल बच्चे जो होंगे वो तो कहेंगे हम बाबा से पूरा बरसा लेंगे, एकदम चटक पड़ेंगे। तो बाबा आज के बोलो ना, पुरो फूल हये देखाबो, कोनो काटा थाकबे ना, और पुरो दैवी गुणे सेजे सजाए बाबार काछे जाबो, ताई ना? तो बाबा बोलছেন बाप से बहुत लब रहेगा, क्योंकि जानते हैं प्राण दान देने वाला बाप मिला है। नॉलेज का वरदान ऐसा देते हैं जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं, इनसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बन जाते हैं। इतना भंडारा भरपूर कर देते हैं। এখন কি আছি? বাবা বলছেন তোমার এমন ভান্ডারা ভরপুর করব তুমি দেখবে এবার, তুমি হিসেবও করতে পারবে না। जितना बाप को याद करेंगे उतना लब रहेगा, कशिश होगी। सुई साफ होती है तो चुंबक तरफ खींच जाती है ना। तो जो तो आत्मार भालोबासा खाटी अतो बाबार प्रति चुंबकेर मतन टानबे। और यदि बाबार काछे बसेও जोग लागছে ना, माने चुंबक टानছে ना। केन टानছে ना? तार माने आत्मार भीतरे जंक आछे। तो बाबा बोलছেন बाप की याद से कट निकलती जाएगी, किन्तु जोग लागছে ना बोले छेड़े देबे ना, केनना आबार एकटू एकटू लाइट माइट आसते थाकबे, जंक नामते थाकबे। एक बाप के सिवाय और कोई याद न आए। जैसे स्त्री का पति के साथ कितना लब होता है। तुम्हारी भी सगाई हुई है ना, सगाई की खुशी कम होती है क्या? शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी हमारे साथ सगाई है, ब्रह्मा के साथ सगाई नहीं है। सगाई पक्की हो गई फिर तो उनको ही याद सतानी चाहिए। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, गफलत मत करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, लाइट हाउस बनो। बाबा बोलছেন গাফিলতি করো না, আমি তোমাকে চয়েস করে নিজের পাত্রে রেখেছি নিয়ে যাব বলে, আর তুমি ভুলভাল কাজ করবে। বাবা বলছেন স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে যাও আর লাইট হাউস হয়ে যাও। বাবা গতকাল প্রমাণ দিল না, डबल लाइट फरिश्ता। स्वदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो फिर तुम जैसे ज्ञान का सागर हो जाएंगे। जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं ना, तो बोले ना हरे कृष्ण, तो कृष्णेर मतन हबार एकटाई अस्त्र। कृष्णेर हाथे की घुरते थाके? चक्र। तो যত সুদর্শন চক্র ঘুরতে থাকবে অত কৃষ্ণের মতন होते থাকবে। तुम्हारा धंधा ही यह है, सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ, तब ही चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। इसीलिए बाबा सदैव बच्चों से पूछते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी हो बैठे हो? कि बोलो बाबा?
সবাই হাতে সুদর্শন চক্র ঘোরে সারাদিন, না কোথায় যায় খুঁজে পাই না সারাদিন, না থাকে সঙ্গে থাকে। बाबा बोलছেন बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है ना, बाप आए हैं तो मीठे बच्चों को वापस ले जाने। তাই না, বাবা বলছে না আমার শুধু খোঁজ পুরো হয়ে যাক, যত ফুল আমার চাই আমি সব ফুল জোগাড় করে নিই, তারপরে আমি সঙ্গে নিয়ে যাব, তাই না, ধুলাই পোছাই করে সুন্দর করে নিয়ে যাব, আর বাদ বাকি কাঁটার জঙ্গল তো আগুন লেগে যাবে। तुम बच्चों बिगर हमको भी जैसे बेआरामी होती है, जब समय होता है तो बेआरामी हो जाती है, তাই না, কোনো মা বাবার বাচ্চাগুলো খুব কষ্টে আছে, দুঃখে আছে, তাই না, ভালো লাগবে, তারা শান্তিতে থাকবে, বেচেন হবে না, তাই না। তো সেই রকম বাবা বলছে তোমরা এত দুঃখে আমাকে ডাকছো, আমার ভাল লাগছে না, তাই না, আমারও বেআরামি হয়ে যাচ্ছে, কবে দুনিয়া ঠিক করব তবে গিয়ে আমার শান্তি হবে, তাই না। बस अभी हम जाऊं, बच्चे बहुत पुकारते हैं, बहुत दुखी हैं, तरस पड़ता है, अब तुम बच्चों को चलना है घर, फिर वहाँ से तुम आपे ही चले जाएंगे सुख धाम, वहाँ मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा, है ना, सतयुगे शिव बाबा जाबे ना, अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा चली जाएगी, जार अवस्था जे रकम। तुम बच्चों को यह नशा रहना चाहिए, हम रूहानी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हम मनुष्य से देवता अथवा विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं। আমাদেরকে কে চয়েস করেছে? শিব বাবা, তার স্কুলে পড়াচ্ছে। যখন তৈরি হয়ে যাব সে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। तो इससे हम सारी मिनिस्ट्री पास कर लेते हैं, हेल्थ की एजुकेशन भी पढ़ते हैं, कैरेक्टर सुधारने की भी नॉलेज पढ़ते हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री, फूड मिनिस्ट्री, लैंड मिनिस्ट्री, बिल्डिंग मिनिस्ट्री सब इसमें आ जाती है, তাই না। আজকে যখন বিধানসভা লোকসভা চলে, তো কত মিনিস্টার লাগে, কমসে কম 25-30 তো থাকবেই, কত ডিপার্টমেন্ট চলে, তাই না, জানি না আমি যদিও বা, তাও 25-30টা ডিপার্টমেন্ট তো থাকবেই। কে বাচ্চাদেরকে দেখে, কে মহিলাদের দেখে, কে, তাই না, ফুড মিনিস্টার, কে রেলওয়ে মিনিস্টার, কত মিনিস্টার থাকে না। বাবা বলছে তুমি যখন রাজা হবে তোমার কাছে সব মিনিস্টারের বুদ্ধি থাকবে, তোমাকে আলাদা আলাদা করে এতগুলো মিনিস্টার ডিপার্টমেন্ট লাগবে না, তুমি একলাই সব অলরাউন্ডার হবে, তাই না। তো সেই রকম বাবা তৈরি করছে বাচ্চাদেরকে। मीठे मीठे बच्चों को बाप बेट समझाते हैं, जब कोई सभा में भाषण करते हो व किसी को समझाते हो तो घड़ी घड़ी बोलो, अपने को आत्मा समझ, परम पिता परमात्मा को याद करो, इस याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम पावन बन जाएंगे। घड़ी घड़ी यह याद करना है, परंतु यह भी तुम तभी कह सकेंगे जब खुद याद में होंगे। इस बात की बच्चों में बहुत कमजोरी है, अंदरूनी तुम बच्चों को खुशी होगी, याद में रहेगी, तब दूसरों को समझाने का असर होगा, তাই না। বাবা বলছেন কখন তোমার অসর হবে অন্যদের উপরে, এক বাবার ইয়াদে থাকবে, দুই খুশি খুশিতে সবাইকে বোঝাবে, তাই না। तुम्हारा बोलना जास्ती नहीं होना चाहिए, তাই না, আবার এতটাও বলবে না যে বেচারা পরেশান হয়ে যাবে, তাই না, মানে সব কিছু মাপ যোগ করে একদম ব্যালেন্স রেখে। आत्म अभिमानी हो, थोड़ा भी समझाएंगे तो तीर भी लगेगा। बाप कहते हैं बच्चे
बीती सो बीती, তাই না? আজকে বাবা কি বলছেন, যা হয়ে গেছে ফুল স্টপ লাগাও, बीती को बीती, সে অধ্যায় শেষ হয়ে গেল। अब पहले अपने को सुधारो, কি কাজ দিল বাবা? নিজেকে ঠিক करो बस। खुद याद करेंगे नहीं, दूसरों को कहते रहेंगे, यह ठगी चल न सके, अंदर दिल जरूर खाती होगी, তাই না? যদি কোনো ভুল হয়ে যায় তাহলে কি হয়, ভিতরে ভিতরে, তাই না? আর কাউকে বলি না বলি নিজে তো কষ্ট পাই না। तो बाप के साथ पूरा लब नहीं है तो श्रीमत पर चलते नहीं हैं, बेहद के बाप जैसी शिक्षा तो और कोई दे न सके। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे इस पुरानी दुनिया को अब भूल जाओ, তাই না? কেউ আমার নিজের না, আবার কেউ আমার পরও না, তাই না? সবাইয়ের সঙ্গে রাস মিলিয়ে আমাকে সার্টিফিকেট নিয়ে দোয়া নিয়ে আমাকে যেতে হবে। কারোর মধ্যে যদি এইটুকুও কমপ্লেন থেকে যায়, চাহে আমার তরফ থেকে চাহে ওই তরফ থেকে, তবুও বাবা বলবে পরে এসো, মিটিয়ে আসো, আমার সঙ্গে যাবে না। তো এটা চাই, এটা চাই। এইটুকুও যদি কমপ্লেন্টস বাকি থাকে, ধর্মরাজ বলবে তুমি একটু সাইড, বাবার সঙ্গে তুমি যেতে পারবে না, তাই না? তো বাবার সঙ্গে কে যাবে? একদম এবার রেডি আত্মা, আমার কারোর প্রতি কমপ্লেন নেই আর কারোর আমার প্রতি কমপ্লেন। তো বাবা বলছেন, मीठे बच्चे इस पुरानी दुनिया को अब भूल जाओ, पिछाड़ी में तो यह सब भूल ही जाना है। बुद्धि लग जाती है अपने शांति धाम और सुख धाम में। बाप को याद करते करते बाप के पास चले जाना है। पतित आत्मा तो जा न सके, वो है ही पावन आत्माओं का घर। यह शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, तो 5 तत्व यहाँ रहने के लिए खींचते हैं, क्योंकि आत्मा ने यह जैसी प्रॉपर्टी ली हुई है, इसीलिए शरीर में ममत्व हो गया है। अब इनसे ममत्व निकाल जाना है अपने घर, वहाँ तो यह 5 तत्व है नहीं। सतयुग में भी शरीर योग बल से बनता है, सतो प्रधान प्रकृति होती है, इसीलिए खींचती नहीं, তাই না? কলিযুগের মাটি তমপ্রধান মাটি, দুনিয়া তমপ্রধান, তাই ওর মধ্যে মায়াবী আকর্ষণ। কিন্তু সত্যযুগের মাটি প্রকৃতি শতপ্রধান, তাই জন্যে সেখানে মোহ থাকে না। इसीलिए खींचती नहीं, दुख नहीं होता। यह बड़ी महीन बातें हैं समझने की। यहाँ 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है, इसीलिए शरीर छोड़ने की दिल नहीं होती। সেখানে শরীরের প্রতি এত কিছু অ্যাটাচমেন্ট থাকবে না, সত্যযুগে টানবে না, শরীরের প্রতি সংকল্পই চলবে না। কিন্তু এখানে সারাক্ষণ শরীরের প্রতি অ্যাটেনশন, কেননা শরীর ঠিক থাকে না তো, এবার শরীরের জন্য কেয়ার করতে থাকা, তো সংকল্পের একটা কি থাকে, অ্যাটাচমেন্ট হয়ে যায়, তাই না? দেখতে হবে, করতে হবে, তাই না? তো বাবা বলছেন সেখানে তো 16 শৃঙ্গার করা নিরোগী কায়া, একবারও শরীরের দিকে সংকল্পও যাবে না। তো नहीं तो इसमें और ही खुश होना चाहिए, না হলে বাবা বলছে শরীর ছাড়াতে তো খুশি হবার কথা। पावन बन शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल, तो शरीर से सब चीज़ों से ममत्व एकदम मिटा देना है। इससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं, बस हम जाते हैं बाबा के पास। तो हमें आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट मात्र, এত বড় শরীর সে একদম আলাদা,
যখন আমি আত্মা বেরোবো এখান থেকে জ্যোতি, এ শরীর আমার সঙ্গে যাবে না, এ সাইড হয়ে যাবে, একে তো লোকেরা পুড়িয়ে দেবে, নিয়ে গিয়ে রাম নাম সত্য এ করে দেবে, তাই না? বাকি আমি আত্মা তো একলাই যাব, জ্যোতি হয়ে যাব, তাই না? बस हम जाते हैं बाबा के पास, আর ওই সময় বুদ্ধিতে কি থাকবে? ব্যাস বাবার কাছে যাচ্ছি। इस दुनिया में अपना बैग बैगेज तैयार कर पहले से ही भेज दिया है, साथ में तो चल न सके, बाकी आत्माओं को जाना है, शरीर को भी यहाँ छोड़ दिया है, बाबा ने नए शरीर का साक्षात्कार करा दिया है। মৃত্যুর 3 দিন আগে কি গতি হবে সে সাক্ষাৎকার হবে। যদি খারাপ গতির দিকে যাচ্ছে কেউ, তো ভয়ানক ভয়ানক রূপগুলো সব সাক্ষাৎকার হবে, তাই না? যে যা কর্ম করেছে। আর যদি ভালো গতি হতে যাচ্ছে, কোথায় গিয়ে জন্মাবো সেটা সাক্ষাৎকার হবে, তাই না? যদি কর্মাতীত হয়ে দেহ রাখি। তো বাবা বলছেন, তো খুশি খুশিতে যখন দেখবো যে আমি কৃষ্ণের মতন হব, লক্ষ্মী নারায়ণের মতন মাতা পিতার কোলে সুন্দর শতযুগে যাব, তো কত খুশি খুশিতে দেহ রাখবো, তাই না? বাবা নে নয়ে শরীর কা সাক্ষাৎকার করা দিয়া, তাই না? একটা বুড়োকে যদি দেখিয়ে দেওয়া হয়, তুমি বিশাল বুড়ো ফ্যামিলিতে সুন্দর বাচ্চা হয়ে জন্মাচ্ছ, তো ওর আর মৃত্যুর কষ্ট থাকবে? সে তো খুশি খুশি শরীর ছাড়বে, তাই না? हीरे जवाहरतों के महल मिल जाएंगे, ऐसे सुख धाम में जाने लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए, थकना नहीं चाहिए, তাই না? বাবা বলছে হাঁপিয়ে যাচ্ছ না তো পুরুষার্থ করে। বাবা বলছে थकना नहीं चाहिए, दिन रात बहुत कमाई करनी है, इसीलिए बाबा कहते हैं नींद को जीतने वाले बच्चे। আমরা লিস্টে আছি তো ना नींदेर बशीभूत होने वाले बच्चे, ना नींद को जीतने वाले बच्चे, कौन लिस्टे आছি? माँ में कम याद करो और विचार सागर मंथन करो, ड्रामा के राज को बुद्धि में रखने से बुद्धि एकदम शीतल हो जाती है, जो महारथी बच्चे होंगे वो कभी हिलेंगे नहीं। কি বললো বাবা? মহারথী বাচ্চা, তাই না? যাই পরিস্থিতি আসুক তার মনে হলচল হবে না। शिव बाबा को याद करेंगे तो वो संभाल भी करेंगे, बाबा तो बसे आछे ना बिगड़ी को बनाने वाला। बाप तुम बच्चों को दुख से छुड़ाकर शांति का दान देते हैं, तुमको भी शांति का दान देना है। तो আজকে কেমন থাকতে হবে? শান্ত স্বরূপ। আর কিসের দান দিতে হবে? শান্তির দান। तुम्हारी यह बेहद की शांति अर्थात योग बल दूसरों को भी एकदम शांत कर देंगे, झट मालूम पड़ जाएगा यह हमारे घर का है व नहीं, आत्मा को झट कशिश होगी यह हमारा बाबा है, नब्ज भी देखनी होती है, बाप की याद में रहे फिर देखो यह आत्मा हमारे कुल की है, अगर होगी तो एकदम शांत हो जाएगी, जो इस कुल के होंगे उन्हों को ही इन बातों में रस बैठेगा। बच्चे याद करते हैं तो बाप भी प्यार करते हैं, आत्मा को प्यार किया जाता है, यह भी जानते हैं जिन्होंने बहुत भक्ति की है वही जास्ती पढ़ेंगे, उनके चेहरे से मालूम पड़ता जाएगा कि बाप में कितना लब है, তাই না? বাবা বলছেন যে বেশি ভক্তি করেছে তার বাবার প্রতি ভালোবাসাও তো জাগবে, আর সে ভালো এখানে যোগীও হবে। आत्मा बाप को देखती है, बाप हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं, बाप भी समझते हैं
हम इतनी छोटी बिंदी आत्मा को पढ़ाता हूँ। কি দেখছে শিব বাবা? ছোট্ট জ্যোতির্বিন্দুগুলো বসে পড়ছে 5-6 ফুটের দেহতে, তাই না? आगे चल तुम्हारी यह अवस्था हो जाएगी। বাবা বলছেন আগে গিয়ে তুমিও ভাবতে শুরু করে দেবে যে আমি জ্যোতির্বিন্দু, আত্মা আলাদা, শরীর আলাদা। এই শরীরকে দিয়ে রোল প্লে করছে, তাই না? समझेंगे, हम भाई भाई को पढ़ाते हैं। बाबा बोलो ना, जाके देखबो कि देखबो भाई भाई। नॉन बीके के आत्मा दृष्टि और बीके के फरिश्ता दृष्टि देखते हबे। शक्ल बहन की होते भी दृष्टि आत्मा तरफ जाए। शरीर स्त्री बा पुरुष, किंतु आछे तो ज्योति आत्मा, तो शरीर पर दृष्टि बिल्कुल न जाए। इसमें बड़ी मेहनत है। यह बड़ी महीन बातें हैं, बड़ी ऊंची पढ़ाई है। वजन करो तो इस पढ़ाई का तरफ बहुत भारी हो जाएगा, है ना? बाबा बोलছে खूब पढ़ाशोना, भारी पढ़ाशोना कराई। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पढ़े दीजिए, टाइम हो गया। 1 नंबर, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरकर फिर दान भी करना है। तो बाबा ज्ञान दान करते बोलते। जो दान करते हैं वो सबको प्यारे लगते हैं, उन्हें अपार खुशी रहती है, তাই না? কাউকে একটু বাবার কথা বোঝাতে পারলে কত খুশি হয়, তাই না? दूसरा, प्राण दान देने वाले बाप को बहुत प्यार से याद करते सबको शांति का दान देना है। तो কি করতে হবে আজকে? শান্ত স্বরূপ থাকবো, শান্তির দান দেব। स्वदर्शन चक्र फिराते ज्ञान का सागर बनना है। আর কি হতে হবে? स्वदर्शन चक्रधारी। वरदान, अंतवाहक शरीर द्वारा। अंतवाहक शरीर माना, अंतवाहक शरीर माना लाइटेर शरीर, सूक्ष्म देह, ताई ना? अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भव। तो कौन शरीर दिए सेवा करब? डबल लाइट फरिश्ता, सूक्ष्म देह दिए सेवा करने वाले डबल लाइट भव। जैसे स्थूल शरीर द्वारा साकारी ईश्वरीय सेवा में बिजी रहते हो, ऐसे अपने आकारी शरीर द्वारा अंतवाहक सेवा भी साथ साथ करनी है, তাই না? কি বলল বাবা? যেরকম স্থূল শরীর দিয়ে স্থূল সেবাতে বিজি থাকো, ওই রকম সাথে সাথে যেন স্থিতি ফরিস্তা থাকে। আর ফরিস্তা কি দেয়? শান্তি, পবিত্রতার, খুশি, আনন্দের ভাইব্রেশন, তাই না? এদিকে শরীর শরীরের কাজ করতে থাকবে আর মন ফরিস্তা হয়ে সেবা করতে থাকবে, তাই না? ডবল সেবা করতে পারবো তো? অ্যাটেনশন থাকবে তো? হ্যাঁ না, শরীর কাজ করছে তো মন তো বিজি হয়ে গেল। तो जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई, वैसे अभी आपके सूक्ष्म शरीरों द्वारा शिव शक्ति के कंबाइंड रूप के साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कार और संदेश मिलने का कार्य होना है। तो कार द्वारा सबाई मेसेज पाबे? जे शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप, माने যে ফরিস্তা বাপ দাদার সঙ্গে কম্বাইন্ড হয়ে থাকে, তাই না? তার দ্বারা সবাই মেসেজ পাবে।
लेकिन इस सेवा के लिए कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट रूप में रहो। किंतु तार जन्य की पुरुषार्थ करते हबे काजेर मध्य थाकते कर्मबंधन मुक्त माने कोथाय आमार हिसाब जोड़ाबे ना ताई ना सेई रकम कर्मबंधन मुक्त हये हाथ काज करबे और मन फरिश्ता हये सेवा करबे। स्लोगन मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन निकलता है वही जीवन को शक्तिशाली बनाता है। तो की करते बोलছেন बाबा गोप गोपीरा की करतो मा যশোদা की करतो गोपीरा की करतो ওই मक्खन बेर करतो चार्निंग करतो তাই না। তো বাবা বলছেন তো বিচার সাগর মন্থন করে মক্খন বের করা এটা হচ্ছে কৃষ্ণের গোপ গোপীর কাজ তাই না। তো জ্ঞান মন্থন করতে হবে মক্খন বেরোবে আর মক্খন খেয়ে শক্তিশালী আত্মা হতে হবে তাই না। কৃষ্ণ কি খেত মক্খন খেত আর মক্খন খেলে কি হবে শক্তিশালী আত্মা কৃষ্ণের মতন তাই না। সব অসুরের উপরে सब कालियो नागेर ऊपरे विजयी आत्मा अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। कोई भी यह नहीं कह सकता कि हमको तो सेवा का चांस नहीं है। बाबा बोलছে কেউ रिपोर्ट करते पारबे ना जे आमी सेवार चांस पाइनी। कोई बोल नहीं सकते तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति सुखमय स्थिति से सेवा करो। बाबा बोलছেন मनसा सेवा সবার জন্য ओपन সবাই করতে পারবে। तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे भी सहयोगी बनो। सिर्फ मनसा में शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। किंतु मनसा सेवा के करबे जे सब समय स्वमाने थाकबे डबल लाइट फरिश्ता ताई ना निर्विघ्न फरिश्ता ताई ना। बाबा बोलছেন शुभ भावनाओं से संपन्न बन। सब समय शुभ चिंता जार चलबे व्यर्थ चिंता चलले ना जोग हबे ना सेवा हबे। सब समय शुभ चिंता सबार प्रति वेल विशार तबे मनसा सेवाधारी होते पारबे। ठीक आछे ओम शांति।